اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آج پیش کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اس دور میں مسلمان اگر ذلیل ہوا تو اعمال کو حقیر سمجھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ میرے دوست تو کہاں مجال تھی. اس امت کے بچوں نے بڑے بڑوں کو جہنم کے گھاٹ اتارا. بچے عورتوں سے بڑے بڑے بہادر پانی پوچھتے تھے، جن کے ہاتھ پیر بھی برابر نہیں تھے، ایسے معذور بھی جہاد میں اترتے تو دشمن فرار ہو جاتے تھے. کیا دور تھا، آج کیا دور ہے، آج کیا دور ہے. کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ. یہ تو دین آسان، حالات کے بدلنے سے اور بھی آسان بنایا، چلتے چلتے ہمیں اور بھی آسان بنا رہی. بیچ میں ایک بات بول تو سنو. قربانی کا سیزن، جن کو طاقت ہے انہوں بکرے دے رہی، جن کو طاقت ہے انہوں پورے سارے گایا دے رہی، جن کو طاقت ہے انہوں راجستھان سے اونٹا منگا رہی. طاقت پر ڈیپینڈ. جن کو طاقت نہیں ہے انہوں کیا کر رہی؟ حصے لے رہی. اپنی طاقت زبردستی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی. زبردستی اگر کرتا تو اللہ فرماتا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر. تو نہیں بولتا نہیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طاقت ہی کے موافق عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو. سجدے کو سر نہیں جھکا سکتے، اشارہ کرو. پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو. غسل نہیں کر سکتے، تیمم کرو. بیمار ہے روزہ چھوڑو، بعد میں رکھو. پیسہ نہیں، زکات دو لو کو. پیسہ نہیں ہے، حج کرو لو کو. کتنی سہولتیں. الدین یسر، دین آسان. اور چلتے ہوئے زمانے پر اور جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا ہے اور بھی آسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو. لیکن ہمیں اپنے طرف سے اور بھی آسان بناتے ہیں. قربانی کا سیزن، جسے طاقت بکرا دے رہا ہے، جسے طاقت گائے دے رہا ہے، جسے طاقت اونٹ دے رہا ہے، جسے طاقت حصہ لے رہا ہے، وہ حصے میں بھی فائدہ تلاش کر رہی. کہاں کی 2000 روپے، کہاں کی 2100 روپے، کہاں کی 700 روپے، کہاں کی 800 روپے. دیکھ رہے ہیں یہاں 2000 روپے، وہاں 800 روپے کو حصہ بھلا پاک کے 1200 روپے بچا کر میرے نوجوان تو کون سی اسمبلی بنے گا؟ کام زیادہ ہے کہ انہیں دینا. جتنا تمہیں خرچہ کریں گے اس کے 10 گنا زیادہ خدا تم کو دے گا. 800 روپے کا قربانی کا حصہ دیں گے. خدا ہمارا محتاج نہیں ہے، تمہارے سے عمل کرا کر تم نہ دیتا سب. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر دوں گا. کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ کہیں 20، کہیں 70، کہیں. جیسے شوق سے تمہیں دیتے ہیں ویسے شوق سے خدا بھی تم نہ دیتا. خدا کے راستے میں کتنا زیادہ کتنا اچھا خرچ کرتے ہیں اللہ تمہاری زندگی میں اتنا اچھا اتنا زیادہ دیتے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید آیا. حضرت میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب بولے تیرے گھر میں کیا کیا ہے کہ پورا جا کو سمندر میں ڈال کو بعد میں تجھے بیعت دے دوں. اتفاق سے وہ مرید کے گھر میں سننے کے ڈلے تھے. اس زمانے میں سننے پیور سننا وہ بھی گھر میں رکھنا تھا، سو دفن کر کو رکھنا تھا، نیتو کانتی بھی رکھنا تھا. اب شیخ کے ہاتھ میں بیعت کر کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے دولت کا کیا اعتبار بول کر انہیں شوق سے نکلیا. جانے کو تھا رستے میں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا. کہاں میں جا رہا ہے سو؟ حضرت کے پاس گیا بیعت لینے کے واسطے. حضرت بولے میرے گھر میں کیا ہے کہ سمندر میں ڈالو بول کر وہ ڈالنے کے واسطے جا رہا ہوں. ارے رے رے دیوانے
तेरे घर में सुनना है, सुनना जाको कौन भी समंदर में डाले क्या, नहीं तो हजरत बैत देते नहीं कहते। ये काम कर, घर को जाको चुपके तुबी फतरे उठा को मूटे में डाल को समंदर में डाला को, हजरत के पास जाको बोल मैं इसे डाला लिया को बोला लिया। इन्हें सीधा गया, मूटे में फतरे बन लिया, सीधा जाको समंदर में डाला को हजरत के पास आकर बोला हजरत डाल डालिया बैत दो, खड़ तेरे हक में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ये तेरे रास्ते में जो कुर्बान किया इसके घर में उसकी बारिश फरमा। बैठ देखो घर को गया तो गांव वाले भाग को इसके घर को, अरे रे 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 क्या रे कर, खाली तेरे घर में फतरे की बारिश हो रही है। सीधा भाग गया, हजरत हजरत मेरे घर में एक ही फतरे पड़ रही है हजरत, जो समंदर में डाला वो पड़ेंगे ना। खुदा के रास्ते में तू जितना अच्छा देता वो अगर तू सुनना जाकर समंदर में डालता, आज पूरे शहर में सिर्फ तेरे घर के अंदर सुनने की बारिश होती। एक शैतान के बहकाने से बहक गया, अल्लाह के रास्ते में देना है तो अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। खुदा बड़े गीरत वाले हैं। फलाइल अमाल में शेख हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज को जाने के लिए तुम जो खर्च करते हो आइंदा साल से पहले पहले वो पूरा खर्च अल्लाह ताला उसके 7 गुना ज्यादा तुम्हारी तिजारत में अता करता है। 2000 रुपये हो, 1900 हो, 800 हो, 700 हो, 1200 रुपये बचाता है और 800 रुपये के हिस्से को जाकर दे रहा है। ये मुझे फलसफा समझ में नहीं आया। पहले ही से मैं 800 और 700 रुपये हिस्से का मुखालिफ हूं। साफ बोलता हूं, डंके की चोट में बोलता हूं। किसी का दिल टूटे या किसी का दिल जुड़े। आइंदा जुमा मुझे मसले कुर्बानी के मसाइल फजाइल पर बात करने का इरादा था। बीच में बात आ गई, आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। बेंगलुरु के अंदर कुर्बानी देना अफजल है। उन उलमा को पूछो जो 700 रुपये हिस्से को खरीदते हैं या 800 रुपये हिस्से को खरीदते हैं, अपने शहर में कुर्बानी देना अफजल है या दूसरे शहर में कुर्बानी देना अफजल है? हमारे रिश्तेदार यहां, हमारे कौम के गरीब यहां 1200 रुपये बचाने के लिए हम कुर्बानी किसी और गांव में दे और यहां के गरीब एक एक टुकड़े गोश्त के लिए घर से बाहर निकलकर मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगे, ये हमारी गीरत गवारा कर रही है। हम बोलेंगे मुजम्मिल तो तंग दिल है, फला स्टेट को मानता नहीं, फला स्टेट को मानता नहीं। इल्जामत लगाना तुम्हारा काम है, तुम्हें इल्जाम लगा तो मैं क्या करूं? मैं सोच ले तू क्या नहीं लगा इल्जाम मुजम्मिल पर ये एक बातें रखने के लिए, लगाओ इल्जाम, लेकिन हक तो जरूर कहूंगा। हाँ, बाहर उस वक्त देना जब यहां इतनी कसरत के साथ कुर्बानियां दी जा रही है कि गोश्त लेकर खाने वाला कोई नहीं है, सड़कर कुत्ते खा रहे हैं, गैर खा रहे हैं। तो उस सूरत में अगर कोई कहे हमारे गांव में कोई कुर्बानी देने वाला नहीं है, जनाब आली आप हमारे गांव पर भी जरा नजरे करम करें। यहां तो बेशुमार देते हैं, हर घर के अंदर 5-5, 10-10 किलो गोश्त पहुंचता है। कबाबों की बात से मोहल्ला पूरा लबरेज है। हमारे गांव में कोई देने वाला नहीं है तो शौक से दे सकते हैं। हमारे शहर के अंदर कितने ऐसे इलाके, आओ मेरे साथ, बगैर सबूत के बात नहीं करता। मैंने इन बकरीद के अय्याम में जब हज के बगैर में इन मौकात में यहां रहा, मैं खुद कई ऐसे घरों तक जाकर गोश्त को पहुंचाया हूं जहां के लोग लेते हुए मुझे दुआ देने लगे और कहने लगे कि हजरत 3 साल के बाद पहली मर्तबा गोश्त हमारे घर को कुर्बानी का आ रहा है। बताऊंगा खोल कर आई नजमा बड़ी सबीले तस्करा बता रहा हूं। यहां दो 1200 रुपये की शक्ल न दो, यहां दो। इसके कई फायदे हैं। यहां रिश्तेदारों को भी पहुंचेगा, यहां के गरीबों को भी पहुंचेगा, फिर ये चमड़े हमारे शहर के मदारिस को पहुंचेंगे। और इस साल तो मदारिस बड़े टेंशन में गुजर रहे हैं। क्यों? रमजान मुबारक के महीने में बर्मा और आसाम का हादसा हुआ। ज़कात देने वाले बहुत सारी ज़कात बर्मा और आसाम को दे दिए, मदारिस को कुछ नुकसान पहुंचा। अब बकरीद की उम्मीदें हैं मदारिस वालों को कि चमड़े मिलेंगे, चमड़े मिलेंगे। ये चमड़े भी अगर ट्रांसफर हो गए तो फिर यहाँ के मदरसे क्या कॉलेज में बदल जाना? यहां का मदरसा, यहां के मदरसे, हमारे मोहल्ले के मदरसे, हमारे शहर के मदारिस में जब मुस्तहिक है और हम दूसरों की फिक्र करते हैं। चलिए तीसरी बात कहता हूं, एक हिस्सा 700 रुपये या 800 रुपये हिसाब लगाओ हुसैन भाई।
8 सफ़े कितना हुआ? 42, 4,200 रुपए। 4,200 रुपए में जानवर भी खरीद लो, जानवर को बकरीद के दिन तक चारा भी डालना है और उसके अलावा जानवर के काटने की मजदूरी 4,000, 4 सफ़े कितना हुआ? ये 7 सफ़े 49, 4,900 रुपए में जानवर की कीमत, कटाने की मजदूरी, बकरीद तक के जानवर का चारा। वो कौन सी भी इतनी सस्ता स्टेट? दीवाना नहीं? बिहार भी गया हो, उड़ीसा भी गया हो, झारखंड भी गया हो, महाराष्ट्र भी गया हो, यूपी भी गया हो, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम हुसैन भाई गवाह हैं। जब मैं बिहार को खरीदने गया, रात का प्रोग्राम हुआ, सुबह को आ रहा हूं रेलवे स्टेशन को कलकत्ता पहुंचने के लिए, कार में आ रहा हूं, एक मोटी ताजी गाड़ी खड़ी थी। मैंने वहां के मेजबान मौलाना इमरान साहब कासमी का नंबर है, पूछ कर देखे। मैंने उनसे पूछा, मौलाना ये जो गाय यहां पर खड़ी हुई है इसकी कीमत क्या हो सकती है? तो उस गाय का गोश्त तकरीबन गोश्त निकालेंगे तो 200 किलो तक का गोश्त आ सकता है। उन्होंने कहा कि 15,000 से 20 और 20,000 से 25,000 रुपए तक की कीमत हो सकती है। मैंने मौलाना से पूछा कि मौलाना आजकल बेंगलोर के अंदर 6-7 हजार रुपए की गायों की कीमत भी लगाते हैं। तो उन्होंने मजाक करते हुए मुझसे कहा, मौलाना 5-6 हजार को भी गाय मिल जाती, तुम्हारे सटा मिलेंगी। कुर्बानी का जानवर अच्छा मोटा ताजा हो, साथ में खूबसूरत भी हो, गोश्त भी मजेदार हो, एकदम बूढ़ा भी न हो, एकदम बच्चा भी न हो, अच्छे से अच्छा कुर्बानी का जानवर खरीदने का शरीयत हुक्म दिए। 1,200 रुपए बच्चा को मुजम्मिल साहब के सगा गाय खरीद रही। अजीब है। अमल को शौक से करो, खुदा के रास्ते में दिल खोल के पैसा खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक तुम्हारी पसंदीदा चीज को खुदा के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। एक बिजनेस चलता आ रहा है, एक साजिश चल रही है, एक वबा फैल चुकी है। हर घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाने वाला मौलवी घर के अंदर तरगीब देकर वहां घर वालों की गाय को अपने घर के गांव के अंदर कुर्बानी देना चाहता है। यहां कौन देगा कुर्बानी? यहां के गरीबों को कौन पहुंचाएगा गोश्त? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे गोश्त के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा दोस्त अहबाब को पहुंचाओ, एक हिस्सा गरीबों को तकसीम करो। गरीबों को कैसे पहुंचेगा? जाओ तामीरी रोड के अतराफ अकनाफ कितने गरीब है, उन घरों को दरवाजा खिटखिटा कर गोश्त पहुंचाओ। पहुंचाने से पहले पूछो कि तुम्हारे घर को कब तक कितना गोश्त आया है। कई इलाके हैं नील सुंदर के अतराफ अकनाफ के, वहां जाकर पूछो। यही गोरी पालिया के अंदर भी कई घर है, हर घर के अंदर तो साहिब मालिक को निसाब नहीं होता, हर घर के अंदर कुर्बानी नहीं दी जाती है। फिर यहाँ के घर वालों को, यहाँ के गरीबों को गोश्त पहुंचाया जाएगा कैसे? 1,200 रुपए बचाकर इन गरीबों का हक मारने वालों, तुम्हारी कुर्बानी आसमान तक पहुंचने से दूर की बात, तुम्हारा बेंगलुरु छोड़कर भी जाएगी नहीं कुर्बानी। अजीब मिजाज है हमारे बेंगलोर वालों का। बड़े मसाइल हैं कुर्बानी देने के। एक 500 रुपए ज्यादा हो गए तो भी हंके से जाकर देखकर जानवर को कुर्बानी दियो। बेगम बोलती, गए साल हुआ, गए साल में, उसके अगले साल तुम्हें साड़ी दिलाए, तो इस साल नहीं दिलाए, इस साल दिलाओ ना। अब साड़ी लेने के वास्ते मियां बीवी जाते हैं। अब दुकान वाला इनको क्या समझ जाता? करोड़पति लाल खान। उठा उठा को 10-10 हजार के, 15-15 हजार के साड़ियां फटाफट पटकता उन्हें। साड़ी बड़ी अच्छी है। अब पलटा को रेट देखता, 12,990 पर 9 रुपए, 1 रुपया क्या करे? ये धोखा। 13,000 का तो लेंगे नहीं, 12,990 पर 9 रुपए। रेट देखते कि नहीं कि शौहर की बीपी डाउन हो जाती, बीवी सोचती, नहीं ये पेन को हूं, शौहर की इज्जत बचाने के वास्ते बोलती उन्हें, ये पेन को हूं मैं, दूसरे जरा दिखाओ। हाई बासी खुदे को लेना बोलकर आई सब, क्या कि एक शौहर के बीवी के इस अंदाज को देखकर, शौहर के पास पैसे हूं, एक साड़ी 5,000 रुपए की, एक साड़ी 7,000 रुपए की,
बीवी को 7,000 की साड़ी पसंद है, शौहर 5,000 रुपए की दिलाने के वास्ते लाया है। एक बीवी का दिल छोटा हो जाएगा, बेगम ये पसंद क्या ले लो, 2,000 रुपए पर। पारवानी बेगम तुम्हारे बाबा घट रहे तक मंजे क्या कर रहे हैं, ले बेगम 7,000 के लिए तुमने पसंद नहीं, ले। बीवी पर खर्च करने का वक्त आता है तो हिसाब नहीं देखता, औलाद पे खर्च करने का वक्त आता है हिसाब नहीं देखता, शादियों पे खर्च करने का वक्त आता है हिसाब नहीं देखता, अल्लाह के नाम पर खर्च करने का वक्त आता है 1,000, 200, 300 बचाता है। शर्म तुझे आनी चाहिए, पसीना तुझे निकलना चाहिए। ऐसे बेशर्म को किसी नाले नदी में डूबने की जरूरत नहीं, अपने पसीने में डूबकर मरना चाहिए। जो खुदा ने तुमको पैसा दिया उसी खुदा के नाम पर सालाना एक मरतबा एक हिस्से के नाम पर 1,200 रुपए बढ़ा नहीं सकता, तो फिर खुदा तेरी दौलत में बरकत कैसे देंगे। यहां दो, चाहे मुझे कुछ भी कह लो बंगाल के उलमा, साफ बात है, हक बात है, अच्छी बात है। ताज्जुब से काली खुदा की कसम, हसद से मेरा सीना पाक खुदा की कसम, किसी की तरक्की से जलता नहीं हो, लेकिन साफ बात करता हूं। यहां दो, जब बेंगलुरु गोश्त से भर जाए, बेंगलुरु के गरीबों के घर घर तक गोश्त पहुंच जाए और गोश्त अफजूद हो, ज्यादा हो, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो उस सूरत में जरा बेंगलुरु से बाहर हटकर भी दे सकते हैं। लेकिन 1,200 रुपए बचाने के लिए 800 रुपए को तरजीह देना या 700 रुपए को तरजीह देना, ये शरीयत मुतहरा के सरासर खिलाफ है। वो भी डायलॉग था क्या, कुछ उलमा ही लगा बिजनेस बना लिए हैं। क्या नहीं, तुम्हारा दादा ही नहीं, दादा नहीं ही, दादी उन्होंने तो दादा से पहले चले गए। बेंगलुरु में 2,000 रुपए हिस्सा दादा के एक नाम से देने के बजाय हमारे गांव में 800 रुपए हिस्सा दादी को भी जमा लियो। अब उन्हें सोचता हाँ ना, मैं दादा का एक पोतरा, दादी का भी पोतरा, दादा दादी दोनों की तरफ से देना बोले तो 4,000 रुपए यहां दिए, तो दादा दादी दोनों को देखो उल्टा 400 रुपए बच रही, 2,000 यहां, 800 की 1,600, नहीं 700 की 1,400, उल्टा बचत लगा रही। कौन भी करें दो, कौन भी करें दो, पहले अपने शहर का हक है, यहां देने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी आपके सामने तरतीब के साथ नंबरवार कुर्बानी के फजाइल और मसाइल पेश करूंगा मैं आपके सामने। 3 हिस्से कर को, 1 हिस्सा घर को दो, खाओ उतना खाओ, बचत के हिस्से में कबाब डालना भी जायज है, डालो। 1 हिस्सा रिश्तेदारों को जाकर पहुंचाओ और 1 हिस्सा गरीबों के घर तक जाकर पहुंचाने की कोशिश करो। जब तक तुम गरीब के दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारी कुर्बानी खुदा के दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। कैसा जमाना आया, अच्छे से अच्छा जानवर खरीदो, तुम्हारे ऊपर वाजिब है तो दो, वाजिब नहीं तो दो न को, देना है तो अल्लाह के नाम में अच्छा दो, अल्लाह के नाम पर घटिया माल न दो, सस्ता माल न दो। जब अल्लाह आपको ताकत दिया है, अच्छा देने की ताकत दिया है, तो अच्छा दो। लेकिन ये फलसफा, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। बात बीच में आ गई, जरूरी थी, चरम है कुर्बानी, मदरसे मुस्तहिक है, शहर के मदरसे मुस्तहिक है, इलाकों के मदरसे मुस्तहिक है। बाज मदारिस वाले इंतजाम को भी करते हैं कि हमारे मदरसे से 50 गायें ज़बह हो, हिस्से आने वाले आकर हिस्सा ले, उनका गोश्त गया तो चमड़े बचेंगे, वो चमड़े हमारे मदरसे के मेहमान रसूल के खाने पीने में काम आएगा। गुज़िश्ता साल नहीं, उससे पहला साल एक मदरसे वाले आकर रहे कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 गायां हिस्से हमारे मोहल्ले से जाते थे, इस मर्तबा 7-8 गायों का भी हिस्सा नहीं हुआ।
محلے والے اور قوم کے بھروسے میں ہمیں گایا لے کر آئے، لیکن یہ 700-800 کے حصے سے بڑا فرق پڑا حضرت۔ انتظار کرو، انشاءاللہ میں واضح کر کے رہوں گا، پہلی ترجیح یہاں دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں دینا جائز نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن ترجیح پہلے یہاں۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا، پہلے ہمارے گھر کو چراغ سلگا کو، بعد میں اللہ کے گھر کو چراغ سلگا بول کر بولتے ہیں۔ ہمارا گھر اندھیرا، دوسروں کا گھر اجالا، ہماری بیٹی ترس رہی ہے، دوسری کی بیٹی کو تحفہ دے رہے، ہماری بہن ترس رہی ہے، دوسرے کے بہن پر لٹا رہے ہیں، ہمارا شہر ترس رہا ہے، دوسرا شہر چلا رہے۔ یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ضرور اتنا بھی سستا نہ بناؤ شریعت کو، آسان نہ بناؤ شریعت کو۔ دین آسانی ہے، حالات کے تحت میں اور بھی آسان ہو گیا، اور بھی آسان بنانے کی کوشش نہ کرو۔ فرض کا درجہ، واجب کا درجہ، سنت مؤکدہ، سنت، نفل، مستحب۔ جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھے نوجوان، پیچھے والا سامنے والا نماز کے بعد کر لیں گے کام، تو سامنے والا بول رہا کیا انہیں مجھے نوٹ کر کو بولیا کہ نہیں ہوں جو بول ڈالا کہ جا آبا 2 بجے نماز ہوتی سو 1 گھنٹے میں ہمیں کام کر لے سکتے نہیں؟ کیا زمانہ ہے دیکھیے، فرض کی توفیق چھن رہی ہے، فرض کی توفیق چھن رہی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نبی کی سنت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے نبی کی سنت سے، جو نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا خدا اس کی زندگی سے فرض کو چھین لیتا ہے۔ حالانکہ سنت کا درجہ چھوٹا، فرض کا درجہ بڑا۔ فرض نہیں کرا تو سنت کی توفیق چھین لینا سو، لیکن اللہ ایسا بتا رہے جو سنت پہ عمل نہیں کرتا اس سے میں کیا چھین لیتا ہوں؟ فرض کو چھین لیتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے نبی کا نہیں بنا تو میرا بن کر کیا فائدہ؟ پہلے نبی کا بن، تجھے میرا بنانے کے لیے میں جس نبی کو بھیجا تو اس نبی کا نہیں ہوا تو میرا کیسے ہوگا؟ پہلے نبی کا بن۔ نبی کا بننے کے لیے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ جب نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے نبی قبر میں خوش ہوں گے۔ اس وقت ہمارے عمل سے نبی کو خوشی پہنچانا ہے، دوسروں کے مکر و فریب اور گستاخیوں سے، دوسروں کی سازشوں سے اللہ کے رسول کو خدا کی قسم خبر مبارک میں کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف تو ہمارے اعمال سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے عمل کو سنواریں اور قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو تلاش کریں۔ بولو انشاءاللہ کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ جمعے کے موقع پر اللہ کے گھر میں دکھانے کے لیے صحیح یہ ہاتھ اگر اٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بڑا حقیقت کے لیے ہم کو عمل کی توفیق دے دیں گے۔ عمل کرو میرے دوستو، ہمارا عمل ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ رب کائنات ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو نبی کی سنتوں سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔